ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سیکیورٹی اداروں کی کارروائیاں، کراچی کے تاجروں کے تحفظات کا اظہار کر دیا، مارکیٹس بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کی آڑ میں دکانیں بند کی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ 48 گھنٹوں میں ہم سے رابطہ نہیں کیا تو مارکیٹ بند کر دیں گے۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن، تاجروں نے دے دیا ری ایکشن، کارروائیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کراچی ہول سیل گروسری ایسوسی ایشن نے ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیوں پر اعتراضات کا اظہار کر دیا۔ ہول سیل گروسر کے چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں کی آڑ میں دکانیں سیل کی جا رہی ہیں، 5 لاکھ روپے تک جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ کراچی محتمل نہیں ہو سکتا، نہ پاکستان، لیکن جو یہ حالات بن گئے ہیں کہ آپ 5 لاکھ کا چالان بغیر پوچھے کہ جی آپ کے چینی کا کٹا پڑا ہے، آپ کی دکان میں 10 کٹے پڑے ہیں، تو ہول سیل بازار میں ہو یا ریٹیل میں ہو تو چینی تو ہوگی، آٹا بھی ہوگا، تو آپ دوسرے مختلف آئٹم بھی جب ہول سیل میں بھی ہیں اور ریٹیل میں بھی ہیں تو وہ سب کو بند کر کے بھاگ جائیں گے، سیل کر دیں گے۔ ہول سیل گروسر کے چیئرمین نے خبردار کیا کہ اگر انتظامیہ نے 48 گھنٹوں میں رابطہ نہیں کیا تو پیر کو اجناس مارکیٹ بند کر دیں گے۔ یہ ہم آپ کو اطلاع کرتے ہیں اور بالکل آگاہی دیتے ہیں کہ اگر اس طرح ہی ہوا تو پورا کراچی احتجاج پہ آ جائے گا۔ اس ٹائم ہم نہیں چاہتے، کیونکہ کراچی یا پاکستان ہڑتال کا محتمل نہیں ہو سکتا۔ اجناس مارکیٹ میں ہڑتال کے باعث شہر میں اجناس کے بحران کے خدشے بھی جنم لے سکتے ہیں۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ چینی اور کھاد کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا جائے۔ نگران سندھ حکومت نے کمشنرز کو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن نے تمام ڈویژنل کمشنرز کو خط ارسال کر دیا ہے۔ خط میں وفاقی حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی، نقل و حرکت کو روکنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ قیمتوں پر کنٹرول کر کے منافع خوروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سندھ حکومت 18 ستمبر کو رپورٹ وفاقی حکومت کو ارسال کرے گی۔ گزشتہ سال سیلاب کے دوران کتنی ذخیرہ گندم خراب ہوئی؟ نگران سندھ سرکار نے تحقیقات کے لیے 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ تحقیقات کے لیے 6 رکنی فزیکل کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی کے سربراہ ممبر چیف منسٹر انکوائری انسپیکشن ٹیم مقرر کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں ڈائریکٹر جنرل زراعت، ریجنل ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک، متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر اور پاسکو کا زونل ہیڈ شامل ہیں۔ فزیکل کمیٹی 2022 کی سیلابی صورتحال میں خراب ہونے والی گندم کی تحقیقات کرے گی اور زمینی حقائق جانچنے کے لیے گوداموں کی فزیکل چیکنگ کرے گی۔ خراب ہونے والی گندم کا تعین کر کے رپورٹ نگران وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ آئل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن نے وائٹ آئل پائپ لائن میں کوٹا 65% کرنے کے لیے حکومت کو 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ صدر ایسوسی ایشن نے کہا کہ مطالبات کی عدم منظوری پر دمادم مست کیلنڈر کریں گے۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ آئل ٹینکرز مالکان ایک بار پھر سراپا احتجاج بن گئے، حکومت کے سامنے اہم مطالبات رکھ دیے، 3 دن میں عمل درآمد کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ صدر آئل ٹینکرز کانٹریکٹر ایسوسی ایشن عابد اللہ آفریدی نے ہڑتال کی دھمکی دے دی، بولے کہ پی ایس او نے ہماری 750 گاڑیاں بند کر دی ہیں اور واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اتنی مہنگائی 10 سال میں نہیں ہوئی جتنی 1 سال میں ہو گئی۔ پرانا گاڑی ان لوگوں نے ہم لوگوں کا بند کیا، کم از کم پی ایس او نے 750 گاڑی ہم لوگوں کا بند کر دیا اور وہ دوبارہ اجازت نہیں دے رہے۔ لوکل کا 100% ہم لوگ مانتے ہیں، لانگ روڈ کا 50% مانگتا ہے، وہ بھی ہم لوگ کے ساتھ اگری نہیں ہوتے، نہ منسٹری اور نہ اگرا۔ اتنا مہنگائی یہ 10-12 سال پہ نہیں ہوا جتنا مہنگائی یہ 1 سال پہ ہوا ہے۔ یہی 3-4 پوائنٹ ہم لوگ کا ہے۔ اگر ہم لوگ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پیر سے ہم لوگ کا پوری پاکستان میں ہڑتال ہوگا۔ آئل ٹینکر کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر سلیمان ترین نے بھی ہڑتال کی دھمکی دی، کہا کہ وائٹ پائپ لائن کے کوٹے میں اضافہ، پرانی گاڑیوں کی بحالی اور کرایوں میں اضافہ نہ کیا گیا تو فیصلہ کن ہڑتال پر جائیں گے۔ وائٹ آئل پائپ لائن میں آئل ٹینکر کا کوٹا، پرانی گاڑیوں کی بحالی اور فریٹ میں اضافہ، کرایوں میں اضافہ، اس کے لیے ہم پچھلے 3-4-5 سال سے مسلسل اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مطالبات حل نہیں ہو سکے۔ یہ ہماری طرف سے آخری ایک موقع ہے حکومت وقت کو کہ بھائی ہمارے ساتھ
संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करें और हमारे इन तीनों मुतालबों के ऊपर गौर करें। अगर हमारे ये मुतालबे हल नहीं होते हैं तो हम एहतिजाजन पीर से काम ना करने की पोजीशन पर चले जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो दमादम मस्त कलंदर होगा, गाड़ियां खड़ी कर देंगे। पुराना गाड़ी को ऑटोमेशन में डालो या वापस नए गाड़ियों को, नया न्यू विजन गाड़ियों को पराठी पे ले आओ। फर्स्ट कम फर्स्ट गो पे बेसिस पे हमारा ये मुतालिबा हल करो। हमारा पुराना गाड़ी बाल करे, अगर नहीं है हम न रोड बंद करेगा न और कुछ करेगा, हम अपना गाड़ी अपना घर में खड़ा करेगा। जब तक हमारी 4 मुतालिबात तस्लीम नहीं होगा इंशाल्लाह कल परसों से हम लोगों का दमादमस कलंदर होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि हुकूमत ने ताहाल किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध में गैस फील्ड मुतासर होने से शहर के कई इलाकों में सुई गैस की कमी का सामना है। किमाड़ी, ऑल सिटी एरिया समेत दीगर इलाकों में गैस की शिकायत सामने आई है। कल से 48 घंटों के लिए CNG स्टेशन बंद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध में गैस फील्ड मुतासिर होने से कराची में गैस का बड़ा बहरान। शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस की किल्लत पैदा हो गई। अवामी कॉलोनी, राम स्वामी कॉलोनी, साइड सुल्तानाबाद, औरंगी, कोरंगी, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजाबाद, लियारी समेत दीगर इलाके मुतासिर हैं। इस तरह किमाड़ी, ओल्ड सिटी एरिया, खारादर, मीठादर, सोल्जर बाजार, FB एरिया समेत दीगर इलाकों में गैस की शिकायत सामने आई है। दूसरी जानिब SSGC ने सिंध में तमाम CNG स्टेशन 48 घंटे के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। CNG स्टेशन हफ्ता 16 सितम्बर सुबह 8 बजे से पीर 18 सितम्बर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। तर्जुमान सुई गैस कंपनी के मुताबिक CNG स्टेशन की बंदिश घरेलू सारिफीन को गैस लोड को मैनेज करने के लिए किया गया। तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज नेमत बसाल और कन्नड़ पासा की गैस फील्ड बिजली के ब्रेक डाउन के बाइस गैस की कमी का सामना है। ताहम नेमत बसाल से गैस दोबारा मिलना शुरू हो गई है, जबकि कन्नड़ पासा की से अभी भी टेक्निकल वजूहात की वजह से गैस सप्लाई मुअत्तल है। शहरी कायद के अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त सेहत खाना खिलाने वालों की शामत आ गई। फूड अथॉरिटी का तेज रफ्तार एक्शन मुख्तलिफ अस्पतालों की कैंटीन्स के अचानक दौरे कर लिए, जिन्हें अस्पताल की कैंटीन पर गैर मयारी खाना पाया गया। डाओ अस्पताल की कैंटीन के खाने को छापामार टीम ने मयारी करार दे दिया। तफसीलात देखिए राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। अस्पताल की कैंटीन्स फूड अथॉरिटी के रडार पर आ गईं। अस्पताल की कैंटीन्स चलाने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। फूड अथॉरिटी के वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर मुख्तलिफ अस्पतालों की कैंटीन्स पर छापे। डाओ ओझा कैंपस में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट यासीन सबुजई का कहना था कि डाओ अस्पताल की कैंटीन्स का माहौल अच्छा है। इंस्पेक्शन के दौरान कोई मुज़र सेहत खाना या कोई और चीज रिपोर्ट नहीं हुई। हमने इनको इंस्पेक्शन की है, इनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखिए, इनकी सूरत हाल माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल, और लाइसेंस के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और हम इनको अपना SOPs भी जो सिंध फूड अथॉरिटी के SOPs हैं उनसे इनको आगाही हमने दी है, और अगली मरतबा हम दोबारा विज़िट करेंगे। अगर कोई भी कमी पेशी इधर निकली तो जाहिर है हम फाइन करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर का मजीद कहना था कि डाओ अस्पताल का दोबारा भी दौरा करेंगे और दोबारा से जांच ली जाएगी कैंटीन्स की। अगर कोई मुज़र सेहत चीज नजर आई तो फौरन जुर्माना किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध ने जिना अस्पताल की कैंटीन्स का दौरा किया था। अस्पताल के किचन में गैर मयारी खाना मरीजों को खिलाए जाने के मामले पर वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सेक्रेटरी सेहत ने 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कैमरामैन सज्जाद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। सूबाई हुकूमत, विफाकी इदारों और इंतजामिया का एक्शन बेकार। शहर में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर पहुँच गई। फेडरल बी एरिया में 120 गज के प्लॉट पर गैर कानूनी पोर्शंस की तामीर का काम तेजी से जारी है, जबकि SPCA हुकाम ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत इलाके में पोषण माफिया और मुबशरा सरपरस्तों के खिलाफ बैनर्स अवेजा कर दिए हैं। तफसीलात देखेंगे जुनेद जावेद की रिपोर्ट में। अजीजाबाद में गैर कानूनी तामीरात से इलाका मकीन परेशान। ब्लॉक 8 समेत ब्लॉक 15 में पोर्शन माफिया के खिलाफ बैनर्स लगा दिए गए। SBCA की मुबैना सरपरस्ती में तामीर होने वाले पोर्शंस की रोकथाम में जिला वस्ती के डायरेक्टर और गुलबर्ग जोन के डिप्टी डायरेक्टर नाकाम हो गए। अजीजाबाद मोहल्ला कमेटी के अरकान का कहना है कि पहले 120 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत तामीर हो रही थी, अब 4 और 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत बनाई जा रही है। SBCA और डिप्टी
कमिश्नर के दफ्तर में दरख्वास्तों का कोई असर नहीं होता। हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है इसमें मोहल्ला कमेटी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, बट नथिंग रिस्पॉन्स हमारी तरफ से कुछ भी मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सका, क्योंकि वो बिल्डर्स हैं एंड दे हैव रियली मतलब वहाँ उनकी अपनी रिसोर्स है जिसकी वजह से कोई कुछ कर नहीं पाता है और वो अपने सारे काम कर लेते हैं। भाई अब तो 5वीं बन रही है, यहाँ तो गली के अंदर 5वीं बन गई है। हम लोगों ने तो उसके लिए भी एहतजाज किया, KBC को भी नोटिस भेजा हुआ है, कितने लोगों को नोटिस भेजा, बल्कि उसके रिमाइंडर भी कराए हुए 3-3 दफा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। पोर्शन माफिया के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स भी मैदान में आ गए। वाइस चेयरमैन आबाद नदीम यूसुफ जीवा का कहना था कि हम पोर्शंस को कभी सपोर्ट नहीं करते, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, क्योंकि ना वो पेपर में आता है, ना वो FBR में आता है, किसी चीज़ में वो आता ही नहीं है, और वो बना के आगे निकल जाता है, ना उस पर कोई नक्शे पे साइन होता है, वो अपना बनाता है और आगे काम चल जाता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे कराची में पोर्शन का काम हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। SBCA के डिप्टी डायरेक्टर शहजाद खोकर का दावा है कि वो सेंट्रल में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जबकि गुलबर्ग, लियाकताबाद समेत नाजमाबाद जोन में गैर कानूनी तामीरात उरूज पर नजर आ रही हैं। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज, कराची। वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की फरमाइश पूरी कर दी गई है। निगरान हुकूमत ने मेयर कराची से बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस ले ली। VAGS E192 गाड़ी निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज को अलॉट कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बुलेट प्रूफ गाड़ी का मसला हल हो गया, मेयर कराची ने बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस कर दी। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को गाड़ी अलॉट कर दी गई। मुर्जा वहाब को बुलेट प्रूफ गाड़ी साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अलॉट की थी। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने फरमाइश की थी कि वो वज़ीर दाखिला हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी अलॉट कर दी जाए। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेयर कराची से गाड़ी वापस ली। गाड़ी साबिक वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल और साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह के ज़ेर इस्तेमाल थी। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने GSE 192 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज को अलॉट कर दी। जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा का शाम की क्लासेस के बायकॉट का दूसरा रोज़। कराची यूनिवर्सिटी की असातिज़ा तंजीम अंजुमन असातिज़ा ने जनरल बॉडी का इजलास तलब कर लिया। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। जामिया कराची के असातिज़ा तंजीम ने क्लासेस का बैकआउट दूसरे रोज भी जारी रखा। अंजुमन असातिज़ा ने इवनिंग प्रोग्राम के मुआवजों की अदम अदायगी और इंतजामिया की जानिब से नामुनासिब जवाब मिलने पर बाइकआउट कर रखा है। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन असातिज़ा फैजान नकवी ने बताया कि यूनिवर्सिटी के ऊपर असातिज़ा के वाजिबात हैं, जिनकी अदायगी तक क्लासेस का बाइकआउट जारी रखेंगे। जनाब वाला बात यह है कि अभी तो हमने इवनिंग के मामले के ऊपर स्ट्राइक की है, क्योंकि इवनिंग के तकरीबन 1.5 साल से वाजिबात जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं। कोई 8-10 करोड़ से ऊपर के हैं जो उनको देने चाहिए, वो अभी तक नहीं दे पाए। अंजुमन असातिज़ा के सीनियर नायब सदर सैयद गुफरान आलम ने बताया कि अंजुमन असातिज़ा का जनरल बॉडी का इजलास पीर के बजाय अब जुमेरात को मुनक्किद होगा। इवनिंग क्लासेस के बाइकआउट से मुतल्लिक शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने भी डीन्स का अहम इजलास डायरेक्टरेट ऑफिस में तलब कर लिया, जिसमें नायब सदर अंजुमन असातिज़ा गुफरान आलम ने उम्मीद जाहिर की कि वाइस चांसलर असातिज़ा के हक में कोई मुस्बत फैसला दें। हमें पता चला है कि डीन्स की एक मीटिंग बुलाई गई है इवनिंग के प्रोग्राम के हवाले से, और हम उम्मीद करते हैं कि उससे जो है वो कोई हौसला बख्श फैसला जो है वो सामने आएगा, और उस सूरत हाल को देखते हुए अंजुमन असातिज़ा पीर से फिर अपने अगले लाए अमल को देखेगी। अंजुमन असातिज़ा की जानिब से इवनिंग क्लासेस का बाइकआउट गैर मुइन्ना मुद्दत तक जारी रहेगा, जबकि इवनिंग में विजिटिंग फैकल्टी की जानिब से क्लासेस मामूल के मुताबिक मुनक्किद होंगी। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि गुलबर्ग टाउन में रबीउल अव्वल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चेयरमैन टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमात की फराहमी की हिकमत अमली मुरतब करके अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। जश्न ईदुल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुलबर्ग टाउन की इंतजामिया मुतहरिक हो गई। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती खिदमात की फराहमी के लिए इकदामात शुरू कर दिए। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं तजावुजात के खात्मे, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का आगाज़ कर दिया गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट का जो इशू है वो तो आपको पहले ही बात होती रही कि भाई सिंध गवर्नमेंट ने कैसा इदारा जो कि ऑलरेडी पहले ही सैनिटेशन डिपार्टमेंट टाउन में मौजूद है, उसके पहले एक सिस्टम मौजूद है, उसको सिंध गवर्नमेंट ओन करती है।
बहरहाल हम अब कोशिश करते हैं कि हमें ये लोगों ने एक एतमाद दिया है, हम नुमाइंदे मुंतखब नुमाइंदे शहर के, तो हम अपनी तौर पर पूरी कोशिश करके अपने डिपार्टमेंट्स को और इनको भी मोटिवेट करते हैं कि वो इस मौके के ऊपर भी ओवरऑल भी हम इनको लेके चल रहे हैं कि किसी तरीके से ये शहर कराची एक मुश्किलात का शिकार है और एक कचरे का ढेर है, उसको इससे निकाला जाए। यूनियन कमेटियों के मुंतखब नुमाइंदे और गुलबर्ग टाउन के अफसरान का कहना है कि रबीउल अव्वल की तैयारियां दीनी फरीज़े को मद्देनजर रखकर अंजाम दे रहे हैं। टाउन काउंसिल गुलबर्ग टाउन जो है उस 12 रबीउल अव्वल के लिए तकरीबन पिछले 10 दिन से काम कर रहा है और इसमें सफाई है। बहुत सी जगहों के ऊपर हमने मसाजिद के ऊपर वाइट वॉश तक का काम किया है। डीसी साहब ने मीटिंग रखी है, उस सिलसिले में उलमा इकराम हमारे और हमारे सारे चेयरमैन पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वो डीसी साहब से मीटिंग करेंगे, फिर एक मुश्तरका लाहे अमल बनाएंगे कि फंडिंग कहाँ से होगी और क्या क्या इंतजाम करने हैं। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने महदूद वसाइल के बावजूद रबीउल अव्वल की तैयारियों के लिए मशीनरी की दुरुस्तगी का अमल भी शुरू कर रखा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।